Good afternoon, friends. This is our lecture 11 of polity. In the last class, we have covered what is the procedure for amendment in the constitution, and before that, we have looked at fundamental duties, DPSPs, and fundamental rights. Now, we have to start with the parliament, executive, and judiciary. Parliament means legislature. We will see the three pillars of democracy, that is legislature, executive, and judiciary, in today's lecture. Now this is the core of Indian polity. In today's class we will try to have a broad perspective of all these three pillars, and in the later classes we will cover in depth. Now before starting today's class, if you want to look at the perspective of Montesquieu. Montesquieu is a French philosopher. He has also inspired the French Revolution in various ways. What he talked about is that there should be a separation of power between, or you can say among, different organs of government, or you can say democracy. Now we have three organs, that is legislature, executive, and judiciary, and inspired from his ideals, there has been a separation of power. Executive has their different role to execute, legislature has their different role to legislate on various policies, and judiciary has different role to interpret the laws and to pronounce upon the constitutionality of various doctrine, various acts, and various policies. So all three organs, all three pillars have their different role. Now we will start with the legislature, that is Parliament of India. And separation of power means the power has been divided into these three organs. So that is the power structure that has been divided into these three organs, and how it has been in functioning, and how one organ can control or limit the power of the other, or you can also say it like a system of checks and balances. There is a checks and balances on one organ by the another one. For example, judiciary can checks upon the role of arbitrariness of executive. At the same time, executive can also have a critical role in the judicial aspects. If judiciary is doing something beyond, then executive can also came with some decree, or you can say some act, or parliament can come with some legislation which can overpower the judicial pronouncement. So we have already seen in various historical antecedent that there has been a tussle, always there is a tussle between parliament versus judiciary, at the same time executive versus judiciary as well. So now in today's session, let us start with the Parliament of India. Parliament, also known as the abode of democracy. It is also known as abode of democracy. It is a ground for discussion and deliberation on various aspects. ये ऐसी जगह है जहाँ पे all the political representative, all the MPs of different political parties, of different ideologies, of different domain, different representations, they meet and they try to discuss upon, they try to dissent upon, and as well as they deliberate on various policy levels. And this is the place where policies are formed. What is the place? Parliament. Now the structure of parliament, that is, it is a bicameral in legislature. Bicameral legislature has been inspired from the which pre-independent act 1935, Government of India Act of 1935. There should be a bicameral legislature at the center. ये आपको पता होना चाहिए. From where
1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. Now bicameral means there are two houses, that is Lok Sabha and another one is Rajya Sabha. Lok Sabha, Lok means people, house of the people, and Rajya Sabha, it is also known as Council of State. लोक सभा इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड, जो हम कहते हैं ना लोकसभा इलेक्शन, जो इलेक्शन होते रहते हैं, मोदी जी जिसके अंदर इलेक्ट हुए थे, दैट इज़ द लोकसभा इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 years में आपको देखने को मिल जाएगी. इट रिप्रेजेंट पीपल, डायरेक्ट पीपल सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए पीपल की विल को ये रिप्रेजेंट करते हैं. राज्यसभा के अंदर जो लोग जाते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो हमारे MLAs होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर रहते हैं, दे इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर. इसलिए आपको ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते, हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो उन्हें इलेक्ट करते हैं. इट मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इट रिप्रेजेंट स्टेट्स, और ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, और जो हमारे स्टेट्स हो गए अलग अलग, MP, UP, बिहार, झारखंड, ये सब जो हो गया दे आर स्टेट्स. और MLAs चूज़ कर रहे हैं, मतलब वही कि ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन इसके बाद में यू विल सी द थर्ड पिलर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज प्रेसिडेंट. President is also integral part of parliament. Parliament consists of 3, that is Lok Sabha, Rajya Sabha as well as president. You don't have to ignore the president. President is also part of parliament. ये आपको याद होना चाहिए. Let us see the लोक सभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम UTs एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन. नॉमिनेट होते थे लेकिन अबॉलिश कर दिया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, यहाँ पे 104th अमेंडमेंट एक्ट में दो नॉमिनेशन होते थे एंग्लो इंडियन के, उसको हटा दिया गया. तो अभी उस हिसाब से देखोगे तो 550 आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी. हालांकि 550 भी नहीं है, आप देखोगे तो 545 आपको देखने को मिल जाती है. नंदलेस टर्म आपको लोकसभा का 5 साल का मिलता है. इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर कैसे डिजॉल्व हो सकता है? फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी के, आपको लेट्स से 220-230 मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं इन द MPs इन द पार्लियामेंट. क्या पता धीरे धीरे जैसे कोई दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर दे या फिर अपोजिशन राइज करने लग जाए, तो अगर मेजॉरिटी में दूसरी पार्टी आ गई या फिर कोई दूसरा दल आ गया और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जितने भी आप देखोगे MPs है, अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए लोकसभा में, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट जो है या फिर आप कह लीजिए लोकसभा, उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकती है. तो 5 years की टर्म रहती है लेकिन कैन बी डिसॉल्व अर्लियर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहते हैं? स्पीकर. अभी प्रेजेंट में स्पीकर कौन है आप बताइए? आप देखोगे कोटा से देखने को मिलेंगे, उनका नाम बताइए अगर आपको पता हो तो. पावर एंड फंक्शंस एक बार देख लेते हैं. लेजिस्लेटिव, भाई लोकसभा का लेजिस्लेटिव पावर क्या है? लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली पावर है. ऑर्डिनरी बिल के ऊपर दे कैन पास ऑर्डिनरी बिल, दे कैन पास मनी बिल, दे कैन पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो तीनों भी यहाँ से आपको पास होते हुए मिल जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इसके बाद में इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल पावर, तो फाइनेंशियल पावर में आप देखोगे मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. अब मनी बिल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आप देखोगे फाइनेंशियल पावर आपको लोकसभा के हाथ में देखने को मिल रहा है. अब ये मनी बिल अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और उसके बारे में और भी डिटेल में हम देखा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती है मनी बिल, किस तरीके से कौन सी चीज़ को, कौन से बिल को मनी बिल बोला जाता है. इसके बाद में कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. अब ये क्या है? लोकसभा इज़ लेजिस्लेचर इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, जहाँ पे कानून बन रहे हैं. लेजिस्लेचर का कंट्रोल किसके ऊपर रहता है? एग्जीक्यूटिव, जो कानून को इम्प्लीमेंट कर रहा है. एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द डे. ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि जो जैसे मोदी जी हो गए या फिर मोदी जी की गवर्नमेंट हो गई, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. वो गवर्नमेंट का तो पार्ट है ही, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, कानून बनाने वाले इसमें भी है, कानून को
नियम को फॉलो कराने या फिर इम्प्लीमेंट कराने वाले इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। और यही वाला जो सिस्टम है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यूके से इंस्पायर्ड हुए है। पार्लियामेंट्री इसके साथ में होता है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से देखने को मिलेगा। इसके अलावा होता है थर्ड सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, इसका एग्जांपल आप देखोगे यूके के बाजू में एक कंट्री है, वहाँ पे आपको सेमी प्रेसिडेंशियल देखने को मिलेगा। बताइए उसका नाम, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है आपको। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा आपको। इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। इसके साथ में कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव ये तो करता ही है। किस तरीके से कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप देखोगे ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन NCM, वही अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे सीट्स अगर कम हो गई या फिर गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई तो उससे क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू रिज़ाइन। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ही गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूव करती है। इसके अलावा हो गया क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो हो गया जब जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होता है या फिर पार्लियामेंट्री की रोज़ की प्रोसेस स्टार्ट होती है, रोज़ की पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, तो जो पहला ओवर होता है फर्स्ट ओवर, दैट इज़ नोन एज क्वेश्चन ओवर। जनरली ये आपको 11 से 12 AM वाला देखने को मिलेगा क्वेश्चन आवर। ठीक है, शुरुआत वाला जो एक आवर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं, देयरफॉर नोन एज क्वेश्चन आवर। इसके बाद है जीरो ओवर। 12 जब बज जाते हैं, 12 बजे को जीरो भी बोला जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो ओवर। तो 12 से 1 तक के आप देखोगे जीरो आवर देखने को मिलेगा। सेंसर मोशन, जब गवर्नमेंट की कोई बातों को सेंसर करना रहता है, उसकी निंदा करनी रहती है, तो सेंसर मोशन कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर लेके आया जाता है। एडजमेंट मोशन, एडजमेंट मोशन की बात करें तो जब भी लोकसभा के अंदर कोई एक अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस के ऊपर डिस्कशन करना रहता है, कोई भी अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उस समय क्या किया जाता है, बाकी सभी नॉर्मल प्रोसीडिंग, नॉर्मल जो काम है उसको रोक दिए जाते हैं, नॉर्मल बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके ऊपर डिस्कशन होता है। दैट इज़ जो भी इंपॉर्टेंट इशू होता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ये सिर्फ लोकसभा में आपको देखने को मिलेंगे एडजमेंट मोशन। ठीक है, बाकी जो दूसरा काम जो है वो एडजन हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एडजमेंट मोशन। एडजन मतलब थोड़े समय के लिए एडजन कर दिया जाता है दूसरा जितना भी नॉर्मल बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आप देखोगे 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए इसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो। वाई भाई, इतना आप देखो सब काम छोड़ दे रहे हैं, सब काम को स्थगित कर दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना। और आपको इसको नोटिस भी देना पड़ता है। और जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट मैटर है, इट शुड बी अर्जेंट, इट शुड बी रिसेंट, इट शुड बी स्पेसिफिक। इम्पॉर्टेंट मैटर जो होता है वो कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट होना चाहिए ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप नॉर्मल इश्यूज़ उठा के उसके ऊपर एडजमेंट मोशन के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं। इसके बाद में आप देखोगे पावर एंड फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा के मेंबर का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। कंस्टिट्यूएंट की बात करें, कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, होते भी हैं। इसके बाद में हो रहा है राज्यसभा। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस, ऑल्सो नोन एज सेकेंड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी 250। 238 स्टेट्स एंड यूटीज से आते हैं और 12 जो रहते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये आपको कौन सी स्कीम से देखने को मिलेगा, लास्ट, दैट इज़ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, लास्ट, ये LASS। इससे आपको ये वाले स्ट्रीम से आप देखोगे कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट अ पर्सन एज अ MP। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सचिन तेंदुलकर जी को कहीं ना कहीं आर्ट वाले एस्पेक्ट से
लिया गया है, या फिर आप कह लीजिए कोई भी बहुत सारे अभिनेता देखने को मिल जाएंगे आपको, दे आर ऑल्सो बिकेम द राज्यसभा मेंबर, हाउ दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रीम से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखोगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे 5 साल के अंदर ये 5 ईयर्स इसका टर्म रहता है, 5 साल बाद पूरे के पूरे जो मेंबर्स है लोकसभा के वापस से इलेक्शन होता है और वो वापस से सिलेक्ट होते हैं। क्या पता एक व्यक्ति जो आज लोकसभा का मेंबर है नेक्स्ट टाइम में सिलेक्ट भी ना हो सकता है। अब राज्यसभा, और ये 5 साल में क्या हो रहा है, 5वें साल जैसे ही ख़त्म हुआ टेनर, तो पूरे के पूरे लोग उस समय आप देखोगे दे आर नॉट दे कैन बी और दे कांट बी इलेक्टेड अगेन, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखोगे सबका टर्म 5 साल का रहता है, 5 साल से बियॉन्ड कोई नहीं कर सकता है जब तक कि वो इलेक्ट ना हो जाए। लेकिन आप देखोगे राज्यसभा के क्या अंदर क्या होता है, एवरी 2 ईयर्स के अंदर इलेक्शन होता है ना, और वो इलेक्शन भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो एवरी 2 ईयर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो 2-2 साल में रिटायर होते जाते हैं लोग, या फिर आप कह लीजिए उनका टाइम पीरियड होते जाता है, टेनर होते जाता है। ठीक है, 2 ईयर्स 2 ईयर्स 2 ईयर्स, तो पूरा हाउस एक ही बार में जो है डिज़ोल्व नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे 2/3 मेंबर आज भी एक समय पे प्रेजेंट रहते हैं। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, और बाकी के जो बचे हुए मेंबर है 2/3 मेंबर रिमेन देयर। फिर उसके बाद में वापस से इलेक्शन होता है, वापस से 1/3 वाली सीट फिल हो जाती है, वापस से पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं। फिर अगले 2 साल बाद वापस से जो दूसरे हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जिनका 6 साल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे प्रोसीजर चलती रहती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएगी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं ही और शी इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की पोजीशन से ही उनकी जो सैलरी ड्रॉ होती है, उनकी सैलरी कहाँ से ड्रॉ होती है, बाय द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। पावर एंड फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल लेजिस्लेटिव पावर एज लोकसभा एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सभी में इनकी पावर बराबर है एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बाकी उसको छोड़ के बाकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर इनकी इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा। इट कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, आर्टिकल 249। हमने देखा था स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और हमने ये शेड्यूल 7 के अंदर भी देख चुके हैं। अब शेड्यूल 7 के अंदर जो आ रहा है स्टेट लिस्ट, अब क्योंकि ये स्टेट के थ्रू ही इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं, देयरफॉर दे हैव द राइट, यहाँ पे आप देखोगे इनको ऑथराइज किया गया है कि दे कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट एज वेल। तो ये स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉज बना सकते हैं। अब स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक स्पेशल आपको यहाँ पे इनके हाथ में पावर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दे अप्रूव्स प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 360 के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रेसिडेंट इमरजेंसी का जो अप्रूवल है वो राज्यसभा के थ्रू भी आप देखते हो अप्रूव किया जा सकता है। दे एक्ट्स एज अ रिवाइजिंग चैम्बर, प्रोवाइड्स फेडरल बैलेंस एंड विजडम। फेडरल संघीय बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के थ्रू लोग आ रहे हैं या फिर एमपीज आ रहे हैं, तो क्या हो गया, फेडरल बैलेंस आ गया, और इसके साथ में विजडम भी हो गया, क्योंकि इसे अपर हाउस भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जो सीनियर एमपीज़ है या फिर सीनियर सिटीजन सीनियर प्लेयर्स है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठाया जाता है, या फिर उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट किया जाता है। तो क्या हो गया, सीनियर, तो उनके साथ में वो अपने साथ में विजडम भी लाते हैं, और इसको रिवाइजिंग चैम्बर भी बोला जाता है। वाई रिवाइजिंग चैम्बर, बिकॉज अगर लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ द डे है, लेट्स से यहाँ पे बीजेपी है, तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो वो रश में अपने कोई भी बिल को पास करा सकते हैं लोकसभा से। लेकिन अगर वो रश में पास हुआ है या फिर जल्दबाजी में पास हुआ है, तो राज्यसभा से भी उसको पास होना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा में अगर आप देखोगे कि फेडरल बैलेंस है वहाँ पे, तो अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दे कैन डेलिब्रेट अपॉन सच एक्ट, और कहीं ना कहीं वहाँ पे रिवीजन उसके ऊपर बातें हो सकती है, तो इसलिए इससे बोला गया है रिवीजन चैम्बर।
इसके बाद में करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ बिल। तो ये हमने क्या देख लिया, लोकसभा देख लिया, राज्यसभा देख लिया। अब इसके बाद में एक बार देख लेते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीजर किस तरीके की होती है ना। पार्लियामेंट की प्रोसीजर, पार्लियामेंट के अंदर आप देखोगे तो कौन कौन से टाइप ऑफ बिल आ सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल हो गए, मनी बिल हो गए, फाइनेंस बिल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गए। ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में हम अच्छे से बाद में करेंगे, और इसके बारे में और अच्छे से हमें डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। इसके बाद में जॉइंट सिटिंग की बात करें, जॉइंट सिटिंग फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक। जब भी ऐसा होता है कि राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, या फिर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो पाया, तो इससे केस में बहुत सारे बिल जो रहते हैं उसके अंदर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। एक इससे पास हो रहा है, एक हाउस से पास नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों के बीच में दोनों का कंबाइन एक सेशन रखा जाता है। वो कंबाइन सेक्शन के अंदर बिल को पास कराया जाता है, और ये क्या हो गया, इसीलिए इसे ही कहा जाता है जॉइंट सिटिंग। और इससे क्या होता है, डेडलॉक रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। और ये जॉइंट सिटिंग जब होती है तो इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है लोकसभा के जो इसकी स्पीकर है, वो इसको हेड करते हैं। मनी बिल के लिए आप जॉइंट सिटिंग नहीं देख सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए भी आप देखोगे जॉइंट सिटिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ में नेक्स्ट आ गया बजट। बजट को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। आप देखते हो हर साल बजट जनवरी में आजकल आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 1110, 110 के अंदर। यहाँ पे आप जॉइंट सेटिंग आपको 108 के अंदर देखने को मिलेगी, ये हम धीरे धीरे अभी करेंगे भी। इसके बाद में अगर आप देखोगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमिटीज़ दैट आर देयर, तो अलग अलग टाइप की कमिटीज़ आपको देखने को मिल रही है। वन इज स्टैंडिंग कमिटी, सेकंड होती है एडहॉक। एडहॉक मतलब होता है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, और स्टैंडिंग मतलब जो बनी हुई रहती है, परमानेंट इन नेचर। स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी के अंदर आप देखोगे पब्लिक अकाउंट कमिटी आपको देखने को मिल जाती है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी। वी कैन ऑल्सो लुक एट एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये आपको अलग अलग टाइप की कमिटी देखने को मिल जाती है स्टैंडिंग कमिटी के अंदर। ये हम और अच्छे से इन अपकमिंग क्लासेस देखेंगे। एडहॉक कमिटी की बात करें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक मीन्स टेम्पररी कमेटी आपको ये देखने को मिल रही है। इसके बाद में लेट अस सी द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमने अभी क्या देखा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर रहा था, कानून बना रहा था, लेजिस्लेट कर रहा था, लेजिस्लेट ऑन वेरियस पॉलिसीज, लेजिस्लेट ऑन पॉलिसीज, दे फ्रेम पॉलिसी। ठीक है, फ्रेम पॉलिसी, दे फ्रेम एक्ट्स, रूल्स रेगुलेशन, वो सब बना रहे हैं। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कौन करा रहा है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम आपको देखने को मिल रहे हैं, जो हेड देखने को मिल रहे हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपको देखने को मिलते हैं। ही और शी इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया कि ही और शी इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन से, नॉमिनल। ये थोड़ा सा वर्ड याद होना चाहिए। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो इलेक्शन डायरेक्ट तो नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट कर रही है, वोट डालने जा रही है, पब्लिक इलेक्शन कर रही है, इलेक्ट कर रही है पब्लिक इलेक्शन के थ्रू, वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसा हो गया, पब्लिक ने इलेक्ट किया एमपीज़ को, एमएलएज़ को। अब ये एमपीज़ एमएलएज़ अपने हिसाब से या फिर उनके वोटिंग के हिसाब से वो चूज़ कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो ये क्या हो गया, पब्लिक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन।
इट इज़ बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टेड एमपीज, एमएलएस, एमपीज एंड एमएलएस जो इलेक्टेड है उनका कॉलेज रहता है, उनका इलेक्टोरल कॉलेज रहता है और वो चूज़ करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 54 के अंदर ये प्रोसेस बताई गई है। इसके बाद में टेनर आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर्स का रहता है, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वापस से री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल ये हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर का टेनर आपको देखने को मिलता है। इम्पीचमेंट, ठीक है, अगर इनको रिमूव करना है तो वो प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के साथ में अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। वो हटाने की प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट, और वो जो प्रोसेस है दैट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 61। और वो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर क्या है, ये सब हम प्रेसिडेंट जब अलग से स्पेशल करेंगे तो हम देखेंगे प्रेसिडेंट किस तरीके से इम्पीच किए जा सकते हैं। लेट अस सी द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर बात करें, एग्जीक्यूटिव, आपको एग्जीक्यूटिव पावर अपॉइंट्स पीएम, भाई बिल्कुल पीएम को अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव काम ये कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाला काम, पीएम, मिनिस्टर, जजेस, गवर्नर, तो ये आप देखने को मिल रहा है एग्जीक्यूटिव वाला रोल यहाँ पे ये एक्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव रोल, दिस ही और शी कैन समन प्रोरोग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को प्रोरोग कर देते हैं। गिव असेंट टू बिल, बिल को असेंट करना, विदहोल्ड करना, ये उस वाई, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का थर्ड पिलर आप देखोगे आफ्टर लोकसभा राज्यसभा आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट गिव असेंट या तो फिर विदहोल्ड असेंट, या तो असेंट दे देते हैं या तो फिर विदहोल्ड करके रखते हैं। तो ये असेंट वाला जो पार्ट हो गया, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ही इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ लेजिस्लेचर का पार्ट। तो लेजिस्लेटिव डोमेन आपको देखने को मिल जाएगा व्हेन ही और शी गिव्स असेंट टू द बिल। प्रोरोग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बुलाना है, पार्लियामेंट को स्थगित करना है, ये आप देखोगे प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। इसके साथ में समन्स, किसी को समन करना है, पार्लियामेंट को समन करना है, पार्लियामेंट को प्रोरोग करना है, इनके हाथ में। जुडिशल रोल भी इनके हाथ में रहता है। जुडिशल पावर, व्हाट आर दोस? पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 में आप देखोगे कोई भी, जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई सज़ा दी तो दे कैन अप्रोच द प्रेसिडेंट फॉर मर्सी, मर्सी पिटिशन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। जुडिशल, ये आपको पावर इनके हाथ में देखने को मिलती है। फाइनेंशियल पावर देखिए तो कॉजेज बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है, बजट पार्लियामेंट के सामने ये रखते हैं, कॉजेज बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। इसके साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356, 360, ये कौन किसके हाथ में पावर है इमरजेंसी प्रोविजंस को कराने की? तो प्रेसिडेंट हैज़ दैट पावर, दैट इज़ इमरजेंसी पावर किसके हाथ में आ रही है? नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, यह आपको देखने को मिलेगा। पावर इज़ इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, 5 आपको डोमेन मिल गए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको एस्पेक्ट देखने को मिल जा रहे हैं द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज के समय पे आप बोल रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है और ये कौन से नंबर के इंडियन प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और इनका टाइम पीरियड कब तक चलेगा, इनका जो टेन्योर है वो आपको कहाँ तक देखने को मिल जाएगा, एक बार बताइए। इसके बाद में लेट अस सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी को पता है अभी श्री जगदीप धनखड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जगदीप धनखड़ आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कोई बता सकता है ये कौन से समय तक के प्रेसिडेंट कौन से समय तक के वाइस प्रेसिडेंट थे? ये 2025 तक के रहे, फिर अभी इन्होंने तो हाँ रिटायरमेंट ले लिया। इनके बाद में कौन बने आप बताइए? इनके बाद में आपको देखने को मिलेंगे सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन। इनके पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ के भी पहले आपको देखने को कौन मिल जाएंगे?
किसी को पता है तो एक बार नाम बताइए। ये जो है अभी की बात करें तो सी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द पार्लियामेंट, आफ्टर द प्रेसिडेंट, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके साथ में आर्टिकल 66 कहीं ना कहीं इनके इलेक्शन की बात कराता है, मैटर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 66 के अंदर हम देखेंगे। और इनके जो जो भी है आप कहीं ना कहीं इनका जो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेट अस सी। आर्टिकल 66 के अंदर इनके इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन ऑफ वीपी। ठीक है, एक बार वापस से समझ लेते हैं और कौन कौन से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। ही और शी ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये तो आपको बताया था मैंने, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का जो चेयरमैन, राज्यसभा के जो हेड रहते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो पूरे प्रोसीडिंग को संभालते हैं, ही इज़ नोन एज चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। एक्स ऑफिशियो मतलब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बने वो चेयरमैन भी बन जाते हैं। वैसे ही आप देखोगे जो लोकसभा के अंदर जो मेन कुर्सी पे बैठते हैं, मेन सेंटर में, और पूरी प्रोसीडिंग को संभालते हैं, ही इज़ नोन एज स्पीकर। ठीक है, स्पीकर बोला जाता है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर क्या बोला जाता है, चेयरमैन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे इनके जो इलेक्शन रहते हैं, आर्टिकल 66 के अंदर हमने बात करी थी, यहाँ पे पार्लियामेंट के दोनों हाउस आपको देखने को मिलते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यहाँ पे आपको एमएलएस का रोल देखने को नहीं मिलता है, एमएलएस जो रहते हैं उसका रोल आपको नहीं देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमएलएस नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो प्रोसेस रहती है बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये वोट कौन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हम डिटेल में करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को भी, अभी जस्ट आपको एक बार रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इवन ड्यूरिंग वैकेंसी और एब्सेंस। अगर एब्सेंस आ गया, प्रेसिडेंट की एब्सेंस आ गई, प्रेसिडेंट की वैकेंसी आ गई, तो उस समय पे ही और शी कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और हमारा ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा लेट अस सी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके हाथ में देखने को मिलते हैं, इनको बोला जाता है दी फैक्टो हेड। मतलब असल फैक्ट की बात करें तो असल फैक्ट में हेड कौन है, ये आपको देखने को मिल रहा है पीएम। आप देखोगे पीएम के हाथ में ही ज़्यादा ताकत है। इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था नॉमिनल हेड आपको देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट रियल हेड कौन देखने को मिल रहा है, ये हो गया नॉमिनल हेड, ये देखिए एक बार, ये हो गया नॉमिनल। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डी फैक्टो हेड कौन है, पीएम की बात हो रही है। पीएम क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव, इनके हाथ में असली पावर है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे हर जगह पे किसका चेहरा चलता है, मोदी जी का चेहरा चलता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी फैक्टो हेड हो गया, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके हाथ में हो गई। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अभी हमने प्रेसिडेंट की जब पावर देखी थी, प्रेसिडेंट की पावर एग्जीक्यूटिव, तो अपॉइंट पीएम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं पीएम को। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि पार्लियामेंट को, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्लियामेंट को नहीं, ये लोकसभा के अंदर बैठते हैं, इसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75(3) के अंदर बताया गया है। कैबिनेट कोर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टेक मेजर डिसीजन। आप देखोगे कैबिनेट
कैबिनेट कमेटी, आपने ये भी सुना होगा कैबिनेट कमेटी या फिर कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या है, मिनिस्टर्स के अंदर भी आप देखोगे कोर ग्रुप है, लिमिटेड हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 3-4 जो कोर आप मिनिस्टर्स देखोगे, यही कहीं ना कहीं कैबिनेट को फॉर्म करते हैं और मेजर डिसीजन ये लेते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपने देखा था 15%, लास्ट क्लास में हमने देखा था 15% ऑफ टोटल सीट्स से ज़्यादा ये नहीं हो सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ऑल कैटेगरीज आ जाती है, कैबिनेट भी आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट भी आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब आप देखोगे दे आर ऑल पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो कैबिनेट का मेंबर हो या फिर डेप्टी मिनिस्टर हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर आता है तो मतलब आपके पास में कोई डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई डिपार्टमेंट को आप हेड करते हो, वो डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हो, कोई डोमेन को हेड कर रहे हो, तो फिर वो पूरा आपके अंडर में आ जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पावर प्रूव करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद में लेट अस सी फंक्शंस ऑफ पीएम। पीएम क्या है, लीडर ऑफ लोकसभा, सभी को पता है लीडर ऑफ लोकसभा। पीएम एडवाइसेज प्रेसिडेंट ऑन की अपॉइंटमेंट, किसको अपॉइंट करना है, किस तरीके से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, वो सब जो है मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के भी हेड होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी को भी हेड करते हैं, उनके हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चलती हैं। रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, इंडिया को इंटरनेशनल डोमेन में भी रिप्रेजेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ पीएम। तो ये हमने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख लिया पीएम के बारे में। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो पीएम को पढ़ने में आपको बहुत सारी उनके और भी पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे। अभी हम जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेजिस्लेचर, हु इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, हु इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हु इज़ द पार्ट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया पीएम ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड पिलर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ द जुडिशरी। जुडिशरी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे थर्ड पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जुडिशरी के अंदर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124, 147, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये इसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन होता हुआ मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अपमान हो रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में कोई लॉज बन रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिए जा रहा है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है या लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के किसके पास में पावर है, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट पावर टू गार्ड। अगर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का कुछ फ्रीडम का कुछ हनन हो रहा है, उसके कुछ अगेंस्ट में बातें जा रही है, तो स्टेट कुछ आर्बिट्ररी एक्शंस ले रहा है या फिर लेजिस्लेचर कोई आर्बिट्ररी एक्शन ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आ सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं दे कैन एक्ट। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो चीफ जस्टिस प्लस मैक्सिमम 33 अदर जजेस, टोटल कितने हो गए 34, 33 + 1। ठीक है, 33 में हो गया सुप्रीम कोर्ट जजेस, और यहाँ पे चीफ जस्टिस एक आपको देखने को मिल जाते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कोलेजियम रिकमेंडेशन, कोलेजियम का रिकमेंडेशन के बाद में आपको प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। कोलेजियम क्या हो गया एक बार समझते हैं। अब कोलेजियम सिस्टम जो है वो 3 जजेस केस से आया है। अब एक्चुअल में क्या है, आर्टिकल अगर आप 124 देखोगे और आर्टिकल 217 देखोगे, आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट दैट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज, आफ्टर कंसल्टेशन विथ जजेस। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल 124 कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाना चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज। लेकिन फिर अलग अलग देखोगे 1981 में, 1993 में, 1998 में अलग अलग बार
सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन अलग किया है। ये हो गया फर्स्ट जजेस केस, ये हो गया सेकंड जजेस केस, ये हो गया थर्ड जजेस केस। तो थर्ड जजेस केस के अंदर से 1998 वाले में निकल के आता है कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस। तो ये जो जजेस का कंसल्टेशन है, मतलब जजेस जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से काम करना है। कंसल्ट का यहाँ पे जो थर्ड जजेस केस के अंदर निकला है कि जो जजेस अब नाम भेज रहे हैं उसको अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये वाला कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन जो कोलेजियम, जो जजेस रिकमेंड कर रहे हैं, और जजेस बोले तो कोलेजियम, इसे नाम दिया गया कोलेजियम। कोलेजियम मतलब CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। CJI प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट आपको जजेस देखने को मिल रहे हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे हैड द पावर टू रिकमेंड नेम्स टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को उसको उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और ये अपॉइंट भी कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, है ना, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस, और उनका ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोलेजियम सिस्टम जो है कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि फिर वो जो कोलेजियम की बात माननी पड़ रही है, तो कोलेजियम क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने अकॉर्डिंग, अपने विम्स एंड फेंसिस के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से उसको उनके ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करवाया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। और ये पब्लिक लाइफ है उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी और नॉन पार्टीशनशिप और इसके साथ में इम्पार्शलिटी वाला एस्पेक्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका भी अगेंस्ट में जाता है ये। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल लाइफ के भी अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसके लिए कोलेजियम सिस्टम का अपोजिशन चलते रहता है। तो कोलेजियम जो रिकमेंडेशन करता है वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कोलेजियम रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है। इनका टीनर देखेंगे तो एज 65 तक के ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका वर्किंग आपको 65 तक के देखने को मिलेगा। ज्यूरिडिक्शन की बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 131 के अंदर। ओरिजिनल मतलब अगर कुछ केस हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाएगा, ना हाई कोर्ट के पास में जाएगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो ऐसा थोड़ी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास में चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के हाथ में। तो डिस्ट्रिक्ट छोटे से लेवल पे बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया लेवल पे बात करता है। तो सेंटर और स्टेट जब दोनों के बीच में टसल होती है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में टसल होती है, या फिर एक स्टेट और मल्टीपल स्टेट वर्सेस एक स्टेट प्लस सेंटर, और अलग अलग कॉम्बिनेशन जो भी बोल लीजिए, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की बात आ गई वहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है। हाई कोर्ट की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाई कोर्ट के पास में भी नहीं जा सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास में। अपीलेट मतलब अपील करना है, हाई कोर्ट के बाद में अपील कर रहे हो आप और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, तो अपीलेट सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कहीं ना कहीं अपीलेट यहाँ पे की जा सकती है फ्रॉम द हाई कोर्ट। एडवाइसरी, प्रेसिडेंट में सीक एडवाइस, आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट को अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो दे कैन सीक, ही और शी कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये एडवाइस यहाँ पे ले रहे हैं, मे सीक एडवाइस, बट ये एडवाइस जो है इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आपने एडवाइस ली तो फॉलो करना ही पड़ेगा उसको, यू हैव टू अवॉइड बाय द एडवाइस, ऐसा नहीं है, जस्ट आप एडवाइस ले रहे हो। आर्टिकल 143 के अंदर जुडिशियल रिव्यू, पावर टू एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, आर्टिकल 13 के अंदर हमने देखा था, 13(2) या फिर लेट से 13 की ही बात करें तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे 13 से ये डिराइव हम कर सकते हैं, पावर टू एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, वेदर लॉज दैट हैज़ बीन फ्रेम इज़ अवॉइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और नॉट। ये आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। IR कोलो केस तो आपको पता ही होगा, एक बार नहीं पता है तो प्रीवियस सेशन देखो और फिर बताओ IR कोलो केस क्या था। IR कोलो केस ये कौन से ईयर में आया था, 2007 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, IR कोलो UPSC इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, आपको पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेके 231 तक के, 214 से लेके
यहाँ पे ऊपर में क्या था 124 था, 124 से लेके 147, तो 124 में 90 ऐड कर लीजिए 214 हो गया, और यहाँ पे 231 तक के। ईच ऑफ द स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट, सॉरी हाई कोर्ट आपको वन फॉर ईच स्टेट, या तो एक स्टेट के लिए या फिर 2-3 स्टेट के लिए आपको हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट कोलेजियम ही रिकमेंड करता है हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंटमेंट। इनका टेन्योर आपको देखने को मिलेगा एज 62 तक के आपको देखने को मिलता है, 62, और फिर हाई सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिलता है 65। इसके बाद में ज्यूरिडिक्शन की बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इनके पास भी है, अपीलेट भी है, रिट ज्यूरिडिक्शन भी है। आर्टिकल 226 के अंदर ये रिट इश्यूज़ कर सकते हैं, और इनकी जो रिट रहती है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट से आपको क्या बोल सकते हैं, वाइडर देखने को मिलती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के अंदर रिट ज्यूरिडिक्शन कर सकता है, रिट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 32। इनकी जो रिट रहती है वो आर्टिकल 226 के अंदर रहती है, और इट इज़ वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो रहती है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दे कैन इशू द रिट, लेकिन यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स के और अदर एक्ट, अदर लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में भी यहाँ पे रिट इशू कर सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट। लेकिन वो हाई कोर्ट एक लिमिटेड स्टेट तक के ही रहेगा, वो स्टेट की बाउंड्री तक ही लिमिट रहेगा। जैसे हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, तो वो मद्रास बोल लीजिए तो तमिलनाडु की बॉर्डर तक रहेगा, या फिर जैसे जबलपुर हाई कोर्ट इन एमपी वाला, तो एमपी की बॉर्डर तक के उसका डोमेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फंडामेंटल राइट है, ऑल्दो इट इज़ नॉट वाइडर देन हाई कोर्ट, बट वो पूरे इंडिया में आपको वैलिड होती हुई मिलेगी। आप कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट में रिट ज्यूरिडिक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। भाई हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स रहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके अंदर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। दे आर कंट्रोल बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इनके अपॉइंटमेंट, इनके ट्रांसफ़र, ये सब हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। हाई कोर्ट के कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट की आपको अपील करनी है तो वो कहाँ पे जाओगे आप? वहाँ पे आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। ये सब हमने देख लिया 3 कोर्ट के बारे में। अब देखते हैं जुडिशल इंडिपेंडेंस क्या होती है। जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात करें तो जुडिशल जो है वो इंडिपेंडेंस मेंटेन कैसे करेगी, उनकी इंडिपेंडेंट हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस मतलब कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई पार्लियामेंट का मेंबर या फिर कोई एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके जो प्रोसीडिंग है या फिर जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसके अंदर में कहीं ना कहीं दखलंदाजी नहीं करे, तो उनकी इंडिपेंडेंस किस तरीके से एंश्योर होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस। इसके अंदर देखते हैं इनकी इंडिपेंडेंस एंश्योर होती है बाय फिक्स टेनर एंड सैलरी। इनकी आप देखोगे सैलरी फिक्स है, इनकी एक टेनर भी फिक्स है 62 ईयर तक के, 65 मतलब फिक्स है, तो कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं कर सकता है, कोई इनके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता है। 62 तक के इनको रहना ही है वहाँ ऑफिस में, तो कोई हटा नहीं सकता है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम इस तरीके से कर सकते हैं। रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट, कोई भी इन्हें हटा नहीं सकता, हटाने की एक प्रोसीजर है दैट इज़ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी इम्पीचमेंट देखा था, लेकिन प्रेसिडेंट की अलग तरीके की इम्पीचमेंट होती है, इनकी अलग तरीके की, जो उनके क्राइटेरियाज है दे आर डिफरेंट। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस आपको इनके लिए देखने को मिलती है, सर्विस की सिक्योरिटी रहती है। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 के अंदर आप देखोगे सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी इन्हें इंडिपेंडेंस मिल रही है। इसके बाद में बात करें जुडिशल एक्टिविज्म एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात होती है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं आप लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। ये PIL आप देखोगे इंडियन इनोवेशन है 1970s के अंदर, 1980s के अंदर ये PN भगवती जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे उनके गाइडेंस में ये स्टार्ट हुआ था, उस समय इनिशिएट हुआ था, ठीक है। जुडिशल एक्टिविज्म मतलब जुडिशल अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, कोई एक्टिविज्म शो कर रहा है। तो जुडिशल एक्टिविज्म के अंदर बात करें तो एक्सपांडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या करा इन्होंने? इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को एक्सपांड किया।
कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 21 के अंदर जो बताए गए हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ, उसके अंदर राइट टू हेल्थ आ गया, राइट टू एजुकेशन आ गया। उन्नी कृष्णन वाले केस में उन्होंने राइट टू एजुकेशन भी उसके अंदर लेके आ गए थे। उसके अंदर राइट टू फ्री क्या था, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट की भी बात आ गई थी। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी की पुट्टा स्वामी केस के अंदर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ, रिवीजन हुआ, और जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू उसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो लोकस स्टैंडी मतलब जो किसी भी केस से जिसको फ़र्क पड़ा है वही कहीं ना कहीं स्टैंड वॉइस रेज कर सकता है, या फिर वही कहीं ना कहीं लिटिगेशन कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकस स्टैंडी को कहीं ना कहीं उन्होंने रिलैक्स कर दिया, तो एनी पर्सन कैन अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक कॉजेज़। कोई भी पब्लिक कॉज है उसके लिए आप कोई भी व्यक्ति जा सकता है कि भाई ये गलत हो रहा है, और आप वहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं PIL के नाम पे। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हो रहा है कहीं पे कुछ एनवायरमेंट के अगेंस्ट कुछ बात हो रही है तो PIL लेके चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही कोई रैंडम केसेस आप देखोगे PIL के आपको देखने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जुडिशल रिव्यू की बात करें, सुप्रीम कोर्ट पावर टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 13, 32, 226, तीनों के अंदर से पावर डिराइव किसके बारे में होती है, जुडिशल रिव्यू की भी पावर डिराइव होती है। सुप्रीम कोर्ट पावर टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे देखता है, 13 एंड 32 के अंदर देखने को मिलती है। और हाई कोर्ट की पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी आपको 13 और 226 के अंदर से देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कहीं ना कहीं वो जो आर्बिट्ररीनेस आती है बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनके आर्बिट्ररी मनमानी जो पॉलिसी बना लेते हैं या मनमाने जो नियम कानून कायदे चलाते हैं, उसके अगेंस्ट में जुडिशल रिव्यू आपको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट पावर टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये हमने देख लिया। इसके बाद में अगर बात करें लैंडमार्क केसेस, देयर आर सम लैंडमार्क केसेस। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पे लाई गई थी। सभी को पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, नहीं पता है तो एक बार आप देखना कि इसके अंदर किसके बारे में, केशवानंद भारती केस के अंदर किसके बारे में बात हुई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे अगर टोटल कितने जजेस थे, यहाँ पे थे 13 जजेस, 7/6 के तरीके से ये डिसीजन यहाँ पे आया था कि इसमें बोला गया था केशवानंद भारती केस के अंदर कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो चाहे अमेंड कर दे, बट इट कैन नॉट अमेंड द बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, या फिर दे कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, अमेंड एनी पार्ट ऑफ द constitution, but they can't amend द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप रिफॉर्म नहीं, उसको अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो करना है आप करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, और जो बेसिक आइडेंटिटी है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन केस 1975 में जुडिशल रिव्यू ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन का जुडिशल रिव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहीं से आप देखोगे कहीं ना कहीं इमरजेंसी के लिए ये सीट बनी थी। इसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस 1980 के अंदर आता है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP की बात बोलता है कि DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यही बात केशवानंद भारती केस ने भी बोली थी, वही बात को इन्होंने रीइटरेट कर दिया। एनजेक केस आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का केस आया था, एनजेक केस अपेल्ड कोलेजियम सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी केस। इसके अंदर क्या होता है, 99 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लेजिस्लेचर है उन्होंने क्या लेके आया था, पार्लियामेंट है उन्होंने क्या लेके आया था, एनजेक लेके आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। एक एनजेक बॉडी लेके आए थे, वो एनजेक बॉडी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगी और उनके ट्रांसफ़र के बारे में बात करेगी। जो कोलेजियम सिस्टम है उसके अगेंस्ट में लेके आया गया था, लेकिन उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एनजेक को हटा दिया, एनजेक को बोल दिया कि इट इज़ नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो और इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम जो था उसको अपहेल्ड किया कि कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है इट इज़ गुड। इसके बाद में एसआर बोम्मई केस 1994 में आया था। ये बोला है कि आर्टिकल 346 का लिमिटेड यूज़ करना है। 356 मतलब बताइए, प्रेसिडेंट रूल का जो है, या फिर इसे बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार आप हर जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगा दें अगर कोई वहाँ पे अपोजिशन है तो। सेंटर को प्रेसिडेंट रूल जो है इट शुड बी यूज्ड लिमिटेडली। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कैसा भी यूज़ कर दिया जाए। तो ये हमने लैंडमार्क केसेस देख लिए। नाउ इंटरलिंकेजेस की बात करें, पार्लियामेंट मेक्स लॉज, सभी को पता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट, जुडिशरी इंटरप्रेट, ऑलरेडी कितनी बार ये समझ चुके हैं। और ये सबसे क्या हो रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट यहाँ से किया जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सो दिस इज़ द थिंग दैट हैज़ बीन कवर्ड इन टुडेज सेशन। हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें। तीनों के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल चलती रहती है, पावर स्ट्रक्चर और उनका फंक्शनिंग कैसा है। पार्लियामेंट के अंदर आप देखोगे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आ जाते हैं। लोकसभा के बारे में फंक्शंस, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल, कंस्टिट्यूएंट, अलग अलग चीज़ें हम देख चुके हैं। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250, 238 + 12 परमानेंट हाउस है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट है, पावर एंड फंक्शन देख लिया हमने। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर टाइप्स ऑफ बिल, जॉइंट सिटिंग की बात हो गई, बजट हो गया, कमिटीज़ हो गई, स्टैंडिंग एडॉक। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड, आर्टिकल 52, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, एमपीज़ होते हैं, एमएलएज आर्टिकल 54 के अंदर आ गया। टीनियर 5 ईयर का होता है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। इम्पीचमेंट अगर वायलेशन कर रहे हैं 61 के अंदर बताया गया, वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ पे रोल में रहता है। यहाँ पे आपको एमएलए का रोल देखने को ही नहीं मिलता है, एमएलए आते ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना है। इनका इलेक्शन की बात होती है, आर्टिकल 66 के अंदर बात हो गई है। और ये एक्ट एज अ दे कैन, ही और शी कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन नए बने हैं, जगदीप धनखड़ जी पहले थे। और जगदीप धनखड़ जी के पहले भी कौन थे वो बताइए। उनकी आपने बहुत बार स्पीच सुनी होगी, फ्रॉम साउथ इंडिया, वो आपको तेलुगु प्रदेश से आते हुए मिलते हैं। नाम बताइए, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको नाम पता होगा उनका। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, पीएम रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड, डिफेक्टो हेड, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सभी को पता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए होती है, ना कि पार्लियामेंट के लिए होती है, ना ही राज्यसभा के लिए होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट कोर ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिनिस्टर्स होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, अदर मिनिस्टर्स आ गए, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आ गए, डेप्यूटी मिनिस्टर आ गए। और ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बताइए 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आया था, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है। फंक्शन ऑफ पीएम की बात करें, फंक्शन ऑफ पीएम, लीडर ऑफ लोकसभा, एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन की अपॉइंटमेंट, हेड ऑफ कैबिनेट, इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। जुडिशरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 125 से 124 से 147, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन 33+1, चीफ जस्टिस। कोलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 65 की एज रहती है। जुडिक्शन ओरिजिनल हो गया, अपीलेट हो गया, एडवाइजरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, रिट जुडिक्शन हो गया आर्टिकल 32 के अंदर। ओरिजिनल हो गया 131 में, अपीलेट भी कर सकते हैं, एडवाइसरी भी देते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस जब सीख करते तो एडवाइस दे देते हैं 143 में। जुडिशियल रिव्यू भी देते हैं आर्टिकल 32 के अंदर जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, आर्टिकल 32 के अंदर रिट जुडिक्शन भी आ जाता है। इसके बाद में हाई कोर्ट की बात करें, 231 के अंदर हाई कोर्ट के बारे में मिल जाता है। वन और ग्रुप ऑफ स्टेट के अंदर आपको एक एक हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हो गया, ये हमने पहले ही देखा था। कोलेजियम सिस्टम ही कहीं ना कहीं इनके अपॉइंटमेंट में मेजर रिकमेंडेशन देता है। टीनर आपका एज 62 तक के आपको देखने को मिलता है। जुरिडिक्शन ओरिजिनल हो गया, अपीलेट हो गया, रिट हो गया। रिट जुरिडिक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगी, आर्टिकल 226 में देखने को मिलेगी। इनकी रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट से वाइडर होती है। इसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट का कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट
अपॉइंट इनके करता है। और हाई कोर्ट के अंदर भी अगर बात करोगे तो हाई कोर्ट के अंदर जो रहते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये कहीं ना कहीं इनके अपॉइंटमेंट में, इनके ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके बाद में सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। जुडिशली अपनी इंडिपेंडेंस कहाँ से रहता है, उनकी सैलरी इंडिपेंडेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती है। उसके साथ में टेनर भी आपका फिक्स रहता है। इम्पीचमेंट की एक रिमूवल की प्रोसीजर है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, सेपरेशन ऑफ फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 50 के अंदर। जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशरी अपनी तरफ से एक्टिविज़म भी दिखाया है बहुत बार। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट को इन्होंने आर्टिकल 21 का अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है, उसके कारण इनका डोमेन भी बढ़ा है। मनका गांधी हो गया, पुट्टास्वामी केस हो गया, इसके बाद में फिर उसके साथ में सबरीमाला केस हो गया, ट्रिपल तलाक आपको देखने को मिल जाता है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आप देखोगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है वो वाला, जहाँ पे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर से उनको हुसैनारा खातून केस, हाँ हुसैनारा खातून केस के अंदर आप देखोगे PIL के थ्रू अंडर ट्रायल्स बहुत सारे जो लोग थे उनका रिलीज़ की बातें की गई थी। PIL के बाद में आता है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 13, 32 टू 26 की बात होती है। 13 और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू कर सकता है। 13 और 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास में आ जाती है जुडिशल रिव्यू की पावर। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो सेंटर के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। हाई कोर्ट हैज़ दैट पावर टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ सेंटर एज वेल। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PM मोदी जी कुछ बना रहे हैं तो MP की गवर्नमेंट भी उसका कोई, MP की हाई कोर्ट, कोलकाता की हाई कोर्ट, लेट से कहीं पे गुजरात की हाई कोर्ट, ये सब भी क्या कर सकती है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी बहुत बार इंटरप्रेट किया है, तो वो जुडिशल रिव्यू का प्रोसीजर हो गया। लैंडमार्क केसेस हो गया, केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, पता है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन, जुडिशल रिव्यू ऑफ इलेक्शन की बात यहाँ पे करी गई है। मिनर्वा मिल्स के अंदर बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल और DPSP के बीच में, 1980 में आया था। एंजेक केस बोलता है कि कोलिजियम सिस्टम को अपहेल्ड किया गया है, जो एंजेक गवर्नमेंट लाई थी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर, और जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट, सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जा रहा है। तो एंजेक को उन्होंने हटा दिया, उसको नल एंड वॉइड करा दिया, उसको डिसइंटीग्रेट करा दिया। SR बोमई केस 1994 में, SR बोमई केस के अंदर ये भी आया था कि जो सेकुलरिज्म है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में इन्होंने ये भी बोला था कि आर्टिकल 356 का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। आर्टिकल 356 मतलब जो प्रेसिडेंट का रूल है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं और जुडिशरी पढ़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रूल लगा सकते हैं। हमने देखा था ना आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट के अंदर, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ एमरजेंसी पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में जो आ रही है उसके अंदर प्रेसिडेंट के पास में इमरजेंसी प्रोविजंस पावर्स है, तो उसका क्या होना चाहिए, लिमिटेड यूज़। ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से आप कर रहे हो। और इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल भी जुडिशल रिव्यू के सब्जेक्ट में आता है। इंटरलिंकेजेस की बात करें, पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस ही कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को रोक रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, एक ही के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होती है, तीनों के पास में बैलेंस रहता है। कभी ये ऊपर इस तरीके से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत ये एक के अंदर दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहते हैं, और यही सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटिन्यूएशन में और इसके सर्वाइवल में जो मेजर रोल प्ले किया है, दैट्स द चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन दिस 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव पता है, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता ही है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद में हम सेंटर स्टेट रिलेशन के पहले हम इनको और अच्छे तरीके से देखते जाएंगे, प्रेसिडेंट और एक एक चीज़ को देखते जाएंगे, सो दैट वी कैन हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। आज हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी केसेस और भी अच्छे तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है, प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो माइंड्स ऑफ UPSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में टेलीग्राम पे भी आप
ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में आई एम रनिंग ए स्पेशल बैच, कंप्रहेंसिव प्रीलिम्स बैच आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्रहेंसिव प्रीलिम्स बैच फॉर 2026, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स में पढ़ा दूंगा। पॉलिटी से हम स्टार्ट किए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके साथ में यू विल फाइंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। अगर बात करेंगे तो यही 6 सब्जेक्ट्स में से आप देखोगे 90+ क्वेश्चन आर जनरली आस्क। 90+ क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कवर करोगे, स्टैटिक के साथ में थोड़ा सा हम जो है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव भी लेते हुए चलते हैं, तो उस तरीके से करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो यू कैन ईजिली सॉल्व। ठीक है, अभी डायनामिक नेचर होते जा रहा है, तो डायनामिक नेचर हम भी जो पढ़ाई है हमारी डायनामिक तरीके से ही पढ़ रहे हैं। आई हैव क्लियर 6 यूपीएससी प्रीलिम्स, तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है आप उसका फ़ायदा उठाइए और ये वाला जो क्रैश कोर्स है ये ज्वाइन कर लीजिए। इट्स वेरी अफोर्डेबल, 3000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 6 सब्जेक्ट्स। अगर आपको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी लेना है तो यू कैन ऑल्सो टेक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इट इज़ ऑफ 1000 पर सब्जेक्ट। इसके साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी, PDF भी मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपको और भी एक मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट मेंटरशिप बैच। इसकी बाकी की सभी की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे टेलीग्राम पे, माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे ज्वाइन करिए, या तो फिर आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।